नमस्कार। असम पुलिस के लिए यह गौरव में आज इस अलंकरण परेड के मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, अहोমৰ कर्मदक्ष स्वप्नद्रष्टा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अहोम सरकारों माननीय मंत्री महोदय सकल, माननीय अहोমৰ मुख्य सचिव प्रमुख अहोम सरकारों विभिन्न वर्गर विषया सकल, Air Officer Commanding in Chief, Eastern Air Command Shillong, Director Generals of Police of Border Security Force and Indo-Tibetan Border Police, Director Generals of Police of Manipur, Nagaland, and representatives of other northeastern states, senior officers from Indian Army and Air Force, Manoniya Abahar Prapta Arokhi Sanchalok Pradhan Pramukhe, বিভিন্ন বৰ্গৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী সকল, মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মনিষ্ঠ সংবাদসেৱী সকল, আজিৰ এই শুভক্ষণত উপস্থিত থকা অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদ সকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ, পৰম পূজ্যপাদ সত্ৰাধিকাৰ সকল, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সন্মানীয় নাগৰিকবৃন্দ, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মীবৃন্দ আৰু এই অলংকৰণ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা নিষ্ঠাবান মোৰ মৰমৰ পেৰেড কমাণ্ডাৰ 2IC আৰু বীৰাংগনাকে ধৰি সাব ইন্সপেক্টৰ কেডেট সকল, ভাৰতীয় মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিশান লাভ কৰাটো আজি ঐতিহাসিক দিনটো অসমৰ ইতিহাসত চিৰদিনৰ বাবে সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। आसाम पुलिस इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के करकमलों से राष्ट्रपति निशान प्राप्त करके गर्वित है। इसलिए असम पुलिस ही नहीं बल्कि असम की जनता भी गर्व और आनंद की अनुभूति कर रही है। इस अवसर पर मैं माननीय गृह मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी अपना बहुमूल्य समय दिया और आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। साथ ही आज के इस शुभ अवसर पर मैं असम पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं समस्त पुलिस कर्मियों का अभिनंदन करता हूं, जिनकी कर्मनिष्ठा एवं कठिन परिश्रम का परिणाम स्वरूप असम पुलिस को आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही असम पुलिस के पूर्ववर्ती अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को उनके बहुमूल्य योगदानों का भी मैं आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত কৰ্তব্যৰ বেদীত নিজৰ জীৱন আহুতি দি দেশৰ অখণ্ডতা, সাৰ্বভৌমত্ব, শান্তি শৃংখলা, স্বাভিমান আৰু গৌৰৱৰ ধ্বজা উৰুৱাই ৰখা वीर शहीद সকললৈ মই প্ৰণিপাত জনাইছো। इन वीर शहीदों को प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक पुस्तक प्राउड लीगेसी का विमोचन होने जा रहा है। इसके अलावा असमिया भाषा में लिखित एक दूसरी पुस्तक दुर्जय सिपाही का भी विमोचन होने जा रहा है। इस पुस्तक में 61 ऐसे वीर पुलिस कर्मियों का गाथा का संकलन है जिन्होंने अपने शरीर पर लगी गोलियों और बमों का घाव का परवाह ना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। असम के दूरदर्शी मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में असम पुलिस को नई दिशा दी जा रही है। इस दिशा में हमारा मूल मंत्र है फुलत कोयु कोमल वज्रत कोयु कठोर मोर हृदय। যোৱা এটা বছৰৰ এনে এক নতুন সংস্কাৰমুখী পুলিচ কৰ্তব্যৰ এক খতিয়ান ফোর্স অফ স্টিল উইথ হিউম্যান হার্ট
किताबखनो आज उन्मोचन हब। इस अवसर पर हम असम के लोगों की सेवा के लिए समर्पित होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। मैं असমৰ जाति धर्म वर्ण भाषा निर्विशेषे समूह राइजলৈ सेवा जाची मोर वक्तव्य सामरिछु। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, সমবেত সুধীবৃন্দ আৰু অসম আৰক্ষীৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ সকলো স্তৰৰ মোৰ পৰম মিত্ৰ জোৱানসকল, অসম আৰক্ষীৰ 150 বছৰীয়া ইতিহাসত আজি এক গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন। অদম্য সাহস, বীৰত্ব আৰু অনন্য বিজয় গাথাৰে উল্লেখযোগ্য কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম আৰক্ষী আজি এক পুনৰ নতুন সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে আজি অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান। এয়া হৈছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি অসম আৰক্ষী আগবঢ়োৱা নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ স্বীকৃতি। অসম আৰক্ষীৰ প্ৰফেশ্যনেলিজিম, দায়বদ্ধতা, দক্ষতা আৰু অনুশাসনৰ প্ৰতি এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। এই বিশেষ সন্মান লাভৰ গৰিমামণ্ডিত মুহূৰ্তত মই অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী নিষ্ঠাবান বিষয়া জোৱানক শলাগ লৈছো, অভিনন্দন জনাইছো। আৰু অসম আৰক্ষীত সেৱা আগবঢ়াই থৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী কৰ্তব্যপৰায়ণ বিষয়া আৰু জোৱানৰ প্ৰতিও মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। আজিৰ এই সন্মান প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ এই অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সুদক্ষ আৰু দূৰদৰ্শী গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছো। আজি এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে। আমাৰ চৰকাৰৰ 1 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতি আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰেৰণা আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক। মই পুনৰ এবাৰ তেখেতলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই সেই সকললৈকে মূৰ দুৱাইছো যিসকল অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদে দেশমাতৃৰ সেৱাত নিজৰ চৰম ত্যাগ কৰি থৈ গৈছিল। তেওঁলোকৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল গাথাই অসম আৰক্ষীক সদায়ে চহকী কৰি ৰাখিব। আজিৰ সভাত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদ পৰিয়াললৈ মই নমন কৰিছো, প্ৰণাম কৰিছো। জনসাধাৰণৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত তথা অনন্য সাহস, ত্যাগ আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক অসম আৰক্ষীৰ এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। বিগত 150 বছৰে অসম আৰক্ষীয়ে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, অথচ অদম্য সাহস আৰু উৎকৃষ্ট ৰণকৌশলেৰে সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে চমকপ্ৰদ বিজয় লাভ কৰিবলৈ সাব্যস্ত হৈছে। বিগত দশকবোৰত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাই কেনেদৰে ৰাজ্যৰ জনজীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ এৰি থৈ গৈছে তাৰ কম বেছি পৰিমাণে
আমি সকলোৱে সাক্ষী। উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ ফলস্বৰূপে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে। সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনজনক হেৰুৱা বহুতো পৰিয়ালৰ কাষত মই থিয় দিছোঁ। তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ লগতে এই লোকসকলৰ প্ৰতি এক গভীৰ দায়িত্ববোধো মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। সমাজৰ বিভিন্ন জনৰ দৰে উগ্ৰবাদে অসম আৰক্ষী আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কৰ্মৰত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালসমূহতো মচিব নোৱাৰা শোকৰ চাপ এৰি থৈ গৈছে। উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ তুলনাত প্ৰচুৰ সংযমেৰে চৰম পৰিস্থিতিটো কাম কৰা পেছাদাৰী আৰু দায়বদ্ধ আৰক্ষী বাহিনীটোৰ বহুতো সীমাবদ্ধ থাকে। তৎসত্ত্বেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে সকলো প্ৰত্যাহ্বান আৰু সীমাবদ্ধতাৰ মাজতো অসম আৰক্ষীৰ কাৰ্যকুশলতা সদায় অদ্বিতীয়। সকলো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্ৰতিবাৰেই উগ্ৰপন্থীৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ অন্তৰালত আছে অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী বিষয়া জোৱানৰ প্ৰচণ্ড মনোবল, উদ্যম আৰু উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হোৱাৰ তেওঁলোকৰ দৃঢ় সংকল্প। ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীৰ বহু বীৰ জোৱানে চিৰকাললৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অমৰ সৃষ্টি কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, সেই শীৰ্ষক গীতটিৰ এটি স্তবক এই মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ আহিছে। প্ৰতি জোৱান ৰক্তৰে বিন্দু হ'ল সাহসৰ অনন্ত সিন্ধু, সেই সাহসৰ দুৰ্জেয় লহৰে যাচিলো প্ৰতিজ্ঞা জয়ৰে। অসম सीमाओं में बावजूद लगभग हर बार असम पुलिस उग्रवादी ऊपर जीत हासिल करने में सफल रही है। इसका कारण असम पुलिस के सेवारत अधिकारी और जवानों का प्रबल मनोभाव, उत्साह और दृढ़ संकल्प। अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए असम पुलिस के कोई वीर अधिकारी और जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस मौके पर मुझे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका द्वारा रचित कत जवानों मृत्यु होल शीर्षक एक गीत की पंक्ति याद आ रहा है। भूपेन हाजरिका जी ने गाया था, हर एक जवान के रक्त की बूंद बनी साहस की अनंत सिंधु, साहस की ये मजबूत लहरों ने प्रतिज्ञा ले विजयी की। অসম আৰক্ষীৰ অনন্য সাহস আৰু নিষ্ঠাই এই বাহিনীৰ সকলো প্ৰতিকূলতা অতিক্ৰম কৰি প্ৰতিপক্ষৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু নিজ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মনোবল দিছে। এই অদমনীয় সাহস আৰু মনোবলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু মূল্যৱান জীৱন হেৰাই যোৱাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে সাহসেৰে মূৰ তুলি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ যাত্ৰাত অবিৰাম গতিৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূবলৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ উভতি আহিছে। অসম আৰক্ষীকে ধৰি বিভিন্ন সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ তৎপৰতাত উগ্ৰপন্থীসমূহে উগ্ৰপন্থা ত্যাগ কৰিছে। সিভিল সোসাইটিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহুমূলীয়া অৱদান আগবঢ়াইছে। 2020 চনত স্বাক্ষৰিত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ ফলত বিগত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত উগ্ৰপন্থীসকলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মাতৃৰ বুকুলৈ পুনৰ উভতি আহিছে। বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ঐতিহাসিক কাৰ্বি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। যোৱা 28 এপ্ৰিলত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি আলঙত উপস্থিত হৈ এই শান্তি চুক্তিক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে। ডিমা হাছাও জিলাৰ সকলো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে অস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰি শান্তিৰ পথত খোজ দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1990 চনৰ পৰা বৰ্তি থকা সেনা বাহিনীৰ বিশেষ
ক্ষমতা আইন অসমৰ 23খন জিলাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मार्गदर्शन के कारण आज असम में शांति लौट के आया है और भारत सरकार ने असम का कुल 60% इलाका से आपसा प्रत्याहार करते हुए ये जो शांति का एक जो गति है इसको एक नतुन गति प्रदान किया है। राज्य सरकार गठन हुआर সময়ত আমি ঘোষণা কৰিছিলো আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে অসমক দেশৰ অন্যতম উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা। এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সবাতোকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান হৈছে ৰাজ্যত অপৰাধমুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা আৰু জনসাধাৰণৰ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয় অংশীদাৰ হোৱা। সন্ত্ৰাসবাদৰ মোকাবিলা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অপৰাধী ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু সকলো ধৰণৰ মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল মনোভাৱ অৱলম্বন কৰাৰ বাবে মই অসম আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিলো। অসম আৰক্ষীয়ে অপৰাধমুক্ত ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে। বিগত এটা বছৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম আৰক্ষীয়ে 2034টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে 4838 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু প্ৰায় 550 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। সেইদৰে মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ চিকাৰ হোৱা 250 জনক উদ্ধাৰ কৰিছে। চোৰাং গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয়তাৰে পদক্ষেপ লৈ 992 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে শূন্য সহনশীলতাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ ফলত আজি ৰাজ্যত সংগঠিত অপৰাধৰ হাৰ প্ৰতি লাখ জনসংখ্যাত 344ৰ পৰা 222লৈ নামি আহিছে। অসম আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এই স্বৰ্গভূমি অসমত অপৰাধীৰ কোনো স্থান নাই। गृह मंत्री जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही अपराधियों को ड्रग्स माफिया और सभी प्रकार के मध्यभोगियों के खिलाफ मैंने असम पुलिस को जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाने के लिए आह्वान किया था। असम पुलिस ने अपराध मुक्त और ड्रग्स मुक्त असम के निर्माण के कार्य अपने हाथ में लिए थे। असम पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई आज भी जारी रखी है और आगे भी जारी रखेगा। पिछले एक साल में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए असम पुलिस ने 2834 मामले दर्ज किया है और इससे जुड़े 4838 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 550 करोड़ रुपए का ड्रग्स भी जब्त किया है। इसी के साथ मानव तस्करी के शिकार हुए 250 लोगों को भी बचाया है। असम पुलिस ने गौ तस्करी, गौ माता का तस्करी का खिलाफ कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े 992 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराध और अपराधियों का खिलाफ असम पुलिस द्वारा लिए गए शून्य सहनशीलता का परिणाम स्वरूप आज असम राज्य में अपराध का दर 387 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 222 प्रति लाख जनसंख्या पर आ गए है। असम पुलिस ने आपका मार्गदर्शन से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सभ्यता संस्कृति का ये पवित्र धरती असम में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है और स्थान नहीं हो सकता है। आरक्षी बाहिनीक नतुन गति प्रदान करिবৰ বাবে आरक्षीर आधुनिकरणतो आमी गुरुत्व दिसु। काমৰ बोझा হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ आरक्षी থানাত 2টা চিফ কাম কৰাৰ বাবে আমি পৰিকল্পনা কৰিছো। आरक्षी লোকসকলৰ আৱাসগৃহ নিৰ্মাণ, বিভিন্ন বেটেলিয়নত নিযুক্ত आरक्षी কৰ্মীসকলক পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ এমাহৰ বিশেষ ছুটি আৰু
আমি পেছাদাৰী কমাণ্ডো বেটেলিয়ন গঢ়ি তুলিছোঁ। ৰাজ্যত 7খন ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰ নতুনকৈ স্থাপন কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ গৃহ আৰু বাসস্থানৰ বাবে আমি এটা বিশাল কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে অসম আৰক্ষীত হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন আমি নিৰন্তৰভাৱে উন্নত কৰিব পাৰোঁ। দেৰগাঁৱৰ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ক এক বিশ্বমানৰ আৰক্ষী একাডেমীলৈ উন্নতি কৰাৰ বাবেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ অসম পুলিচৰ জোৱানসকল আৰু বিষয়াসকল, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আজি অসম আৰক্ষীক সন্মানীয় নিচান প্ৰদান কৰিলে। আমি গৌৰৱান্বিত যে এই নিচান প্ৰদান কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিজে আহি অসম আৰক্ষীক এই গৌৰৱৰ প্ৰতীক আৰক্ষীৰ নিচান প্ৰদান কৰিছে। আৰক্ষীৰ বীৰাংগনাসকল, বীৰসকল, অফিচাৰসকল, মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিম, মই এনে এটা অসম আৰক্ষী বিচাৰিছোঁ যি অসম আৰক্ষীক প্ৰতিজন ৰিক্সা চালক, প্ৰতিজন ঠেলা চালক আৰু প্ৰতিজন কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম কৰা আমাৰ দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ লোকে নিজৰ বন্ধু বুলি গণ্য কৰিব পাৰে। ৰিক্সা চালকৰ মূৰত লাঠিৰ মাৰ কোবোৱা অসম আৰক্ষী আমাক নালাগে। তেওঁলোকক মৰমেৰে তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ স্বীকৃতি দিয়া এটা আৰক্ষী বাহিনী আমাক লাগে। আমাক এনেকুৱা এটা আৰক্ষী বাহিনী লাগে যি মোৰ মা আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে ৰাতি 2টা বজাতো থানালৈ যাব পাৰে। কোনো এজন মদ খোৱা মানুহে বাইদেউ আৰু মাসকলক সাক্ষাৎ নকৰে। 24 ঘণ্টাই অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে 24 ঘণ্টাই কাম কৰে। আৰু তেনে এক আৰক্ষী বাহিনীৰ অংকুৰ যোৱা এটা বছৰত হৈছে। কোভিডৰ সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে আগবঢ়োৱা নিৰল সেৱাই অসম আৰক্ষীক অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা এবছৰত এক্সিডেণ্টৰ ৰিপৰ্টে হওক, অপৰাধৰ তদন্তই হওক, কাৰোবাৰ সতীত্ব হৰণ কৰা মা, বোৱাৰী আৰু কন্যাসকলৰ কাষত থিয় হৈ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিলৈ অসম আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে। মই অসম আৰক্ষীৰ এই গৌৰৱ উজ্জ্বল মুহূৰ্তত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি মুহূৰ্ততে শূন্য সহনশীলতা। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই। অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা, মা কামাখ্যা আৰু শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মুক্ত কৰিম। আৰু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে কৰ্তব্য পথত অহা সকলো বাধা আমি উফৰাম আৰু অসমক এখন আমি শান্তিৰ অসমলৈ নিৰ্মাণ কৰিম। আৰু যেতিয়া দৰিদ্ৰ লোক, পিছপৰা লোক, সমাজৰ নিষ্পেষিত আৰু শোষিতজন আমাৰ সন্মুখত আহিব, তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদান কৰাই হ'ব আমাৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্য, আমাৰ সৰ্বোচ্চ ধৰ্ম। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত আমি সেই আশ্বাস তেখেতক প্ৰদান কৰিছোঁ। गृह मंत्री जी का सामने मैं असम आरक्षियों का ओर से मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगले 4 साल में असम आरक्षी को हम लोग मिल के ऐसे बनाऊंगा कि असम में कोई क्राइम और क्रिमिनल्स का जगह नहीं होगा। गरीब और मेरा माँ बहन असम आरक्षी का सबसे करीब संपर्क में आएगा। अपना माँ का जैसा आरक्षी मेरा माँ को सम्मान करेगा, मेरा बेटी को अपना बेटी जैसा सम्मान करेगा और समाज का हर दरिद्र लोगों को सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा, उनको न्याय देगा। असम से हम उग्रवाद का खिलाफ लड़ते रहूंगा, साथ साथ में शांति का प्रक्रिया भी चलाते रहूंगा। यही 2 शब्द बोलते हुए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ आके आप असम आरक्षियों को जो सम्मान दिया, ये आगे वाला पीढ़ी हमेशा याद रहेगा और आपको हमेशा नमन करते रहेगा कि असम आरक्षियों को आप इतना बड़ा सम्मान से सजाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि
आप हमारा ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखेगा, मार्गदर्शन देते रहेगा और असम को भारत के एक विकसित राज्य में ले जाने में आप हमेशा हमारे प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। সুশৃংখলিত অসম, শান্তিপূৰ্ণ অসম গঢ়াৰ বাবে ৰূপান্তৰৰ দিশত আপোনাৰ যি আন্তৰিক প্ৰয়াস তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এতিয়া আমি গ্ৰন্থ উন্মোচন পৰ্বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি 3খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব। উন্মোচন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই। তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে প্ৰাউড লিগেচি টেলছ অফ ছেক্ৰিফাইচেছ এণ্ড ব্ৰেভাৰী অফ আছাম পুলিচ। দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ দুৰ্জয় চিপাহী দ্য ইনডমিটেবল চিপয়, ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তদেৱে লিখা। আৰু তৃতীয়খন গ্ৰন্থ আছাম পুলিচ ফ'ৰ্চ অফ ষ্টিল উইথ এ হিউমেন টাচ। धन्यवाद। अब मैं आज के आदरणीय मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मंच पर उपस्थित असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम सरकार के पुलिस महानिर्देशक श्री भास्कर ज्योति महंत जी, आज के इस शानदार परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी असम पुलिस के जवान भाइयों बहनों, असम पुलिस परिवार के उपस्थित सभी परिवारजनों और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं समग्र आसाम की जनता और आसाम पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति का निशान आसाम पुलिस को प्राप्त हुआ है। यह आसाम की भूमि श्रीमंत शंकरदेव और मां कामाख्या की भूमि है और आसाम को भूमि पर पग रहते ही लसित बरफुकन अपनी वीरता, बलिदान, देशभक्ति और जुझारूपन के लिए न केवल आसाम के लोग, देश भर के लोग उनको याद करते हैं। यही भूमि है, ये भूमि को मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है, शंकरदेव और माधवदेव का मार्गदर्शन मिला है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र का जल इसके कण कण को रोमांचित करता है और भूपेंद्र हजारिका का संगीत यहाँ की हवाओं में हमेशा हमेशा के लिए गूंजता है। आज असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर असम पुलिस तो गौरव महसूस कर ही रही है, मगर देश के गृह मंत्री के नाते मैं भी गौरव पुलिस महसूस करता हूं कि देश का 10वां पुलिस फोर्स आज से असम पुलिस बनी। मित्रों, राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया जाना किसी भी संगठन के लिए, पुलिस संगठन के लिए असाधारण घटना है और ये 10वां पुलिस संगठन है जिसको निशान प्रदान हुआ है। इसके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, आरएएफ, एसएसबी और आरपीएफ के साथ 10 पुलिस संगठनों के साथ आज से असम पुलिस भी एक गौरवपूर्ण क्लब के अंदर अपना नाम दर्ज करा रही है। इस समग्र असम के लिए बहुत गौरव का विषय है। मित्रों, जहां तक असम पुलिस का इतिहास है, शायद ही देश में कोई ऐसा पुलिस बल होगा जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा। 200 साल के लगभग गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास को याद करें तो 1826 में अंग्रेजों ने यहाँ के जिला मुख्यालय पर एक दरोगा, एक इनामदार
और कुछ कांस्टेबलों की नियुक्ति कर ये फोर्स की शुरुआत की थी। इसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहां तक बांग्लादेश के सिलहट तक के सारे क्षेत्र को समाहित किया जाता था। और यही आसाम पुलिस को गौरव प्राप्त है कि सबसे पुराना उग्रवादी विरोधी बल आसाम राइफल के नाम से, जिसको जन्म देने का गौरव भी आसाम पुलिस को प्राप्त है। एक जमाने में 8,000, आजादी के समय 8,000 का पुलिस बल था। आज आसाम पुलिस की संख्या 70,000 से ऊपर उठी है और अनेक राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण लड़ाई आसाम पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ी है। इसके इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो विभाजन के समय की विभीषिका, इसके सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 7 दशक से चल रही घुसपैठ की समस्या, 71 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में असम पुलिस की गौरवपूर्ण यात्रा और उग्रवाद को चुनौती देने के लिए 80 से 90 तक का एक विदेशी शक्तियों को परास्त करने वाला लंबा संघर्ष विजय के साथ समाप्त करने का गौरव आसाम पुलिस को प्राप्त है। उल्फा, NSCN, NDAP, कई प्रतिबंधित संगठनों के सामने आसाम पुलिस डटकर इसका लोहा लिया है और देश की सीमाओं को और देश की आंतरिक सुरक्षाओं को भी सुरक्षित रखने का काम किया है। आसाम पुलिस ने यूनिफाइड कमांड के तहत ऑपरेशन बजरंग और भारतीय सेना का ऑपरेशन राइनो के अंदर भी एक सहकर्मी की भूमिका निभाकर भारतीय सेना का मजबूत तरीके से सहायता करने का काम किया है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, ये सभी के खिलाफ निरंतर 7 दशक तक आसाम पुलिस ने ये न थकने वाली लड़ाई लड़ी है और विजयी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए उनके डीजीपी से लेकर सबसे कम उम्र वाले कांस्टेबल तक सबको आज मैं देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपको जो राष्ट्रपति का निशान मिला है, आसाम पुलिस उसकी अधिकारी है और सबसे गौरवप्रद लड़ाई लड़ने वाली पुलिस बल में से एक आसाम पुलिस को आज राष्ट्रपति का निशान मिलने का गौरव प्राप्त किया है। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आसाम पुलिस के लगभग 886 कर्मी शहीद हुए हैं और ये लड़ाई में आसाम पुलिस के कर्मियों को 2 कीर्ति चक्र, 4 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 19 पुलिस मेडल भी प्राप्त हुए हैं, जो आसाम पुलिस की वीरता का एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट है। मित्रों, आंतरिक सुरक्षा के लिए जब उग्रवाद का संकट आया तब आसाम पुलिस ने संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसके खिलाफ खड़े हुए, गन का सामना गन से करने का काम किया और साथ में भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में समाहित करने का भी काम किया। इसके कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आसाम पुलिस ने अपनी लड़ाई लड़ी है। प्रोजेक्ट प्रहरी, जादू टोना के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ाई, डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई, कई लड़ाइयों को आसाम पुलिस ने समाज के साथ रहकर कुप्रथाओं से समाज को मुक्त करने का काम भी किया है। असम में हिंसा और आतंकवाद के शिकार बच्चों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट अश्व समग्र देश के अंदर आसाम पुलिस को प्रोजेक्ट अश्व ने गर्व दिलाया है। भ्रष्ट उग्रवादियों के समुचित पुनर्वास और उनके समग्र विकास के लिए स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और लोकाचार की सुरक्षा के लिए आसाम पुलिस ने न केवल प्रयास किए हैं, प्रयास कर परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आसाम की महान भूमि से उग्रवाद के बुरे दिन अब समाप्त होने को आए हैं। उग्रवादी संगठनों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी शांति समझौते एक के बाद एक कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि आसाम के अंदर एक भी उग्रवादी संगठन नहीं होगा। भटके हुए युवा साथी युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद के पर भी एक साथ वार्ता कर एक के बाद एक 7 दशक पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। अब सपा को भी हटाया जा रहा है। कभी यहां आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज आसाम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम आसाम सरकार कर रही है। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। सीमावर्ती जिलों में आसाम पुलिस जो सीएपीएफ हो इसके साथ खड़ी रहकर एक अभेद दीवार खड़ी करी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 साल के अंदर आसाम की सीमाओं से घुसपैठ और 1 साल के अंदर गौश्त तस्करी को लगभग 0 के बराबर लाने में आसाम पुलिस और आसाम सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और कई ऐसे काम जो हुए हैं जो दशकों से लंबित समस्याएं थी। कार्बी समूह के साथ अभी 4 सितंबर 21 को मेरी उपस्थिति में समझौता हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तब समझौते की बहुत सारी शर्तों का पालन भी हो गया है। और बोडो समूह के कैडर का पुनर्वास करना, बोडो समूह के साथ समझौता करना और लगभग 427 पूर्व कैडरों के खिलाफ 274 मामले वापस लेकर आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सपा लागू था। लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सपा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि पूरे आसाम से अब सपा को हटा पाए। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति यहां पर प्रस्तापित की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी और गैंडों का अवैध शिकार, इस पर भी ध्यान खींचने वाली सफलता असम पुलिस ने प्राप्त की है और इस मामले में 2834 मामले दर्ज किए गए, 5000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया और गैंडों के शिकार पर और कड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए हेमंत जी के नेतृत्व में असम पुलिस कटिबद्ध है। विगत 1 साल के अंदर भी असम पुलिस ने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। गायों की तस्करी रोकने, कोयला, लकड़ी, सुपारी की सिंडिकेट को समाप्त करना, गैर कानूनी सरकारी और प्राइवेट जमीनों के कब्जों से मुक्त कराना, असम पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना, फोरेंसिक क्षमताओं का विस्तार करना, पुलिस साइबर डोम परियोजना को लागू करना और इसके साथ साथ भर्ती कर खाली स्थानों को पूर्ण कर पुलिस को और एफिशिएंट बनाना। पुलिस थाना भवनों के उन्नयन के लिए 5 बहुत सारे काम हुए हैं। नए वाहन, हथियार और उपकरण की खरीदी भी बहुत हुई है। नई 5 कमांडो बटालियन के गठन के लिए सामूहिक भर्ती अभियान भी चला है। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज असम पुलिस को
जो राष्ट्रपति का निशान मिला है, आसाम पुलिस इसके लिए सर्वथा सर्वदृष्टि से योग्य पुलिस है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के सबसे अच्छे पुलिस बलों में आसाम पुलिस बहुत उच्च मानांकों के साथ शुमार है। इसका देश के गृह मंत्री के नाते मुझे गौरव है। आसाम पुलिस भारत के सबसे अच्छे पुलिस बलों में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है। इतनी सारी भौगोलिक विषमताएं और चुनौतियों के बावजूद भी आज आसाम विकास के रास्ते पर चल रहा है। दशकों तक आसाम ने जो रक्तपात को झेला है, आसाम ने जो उग्रवाद को झेला है, आसाम ने जो अशांति से झेला है, इसका युग अब समाप्त हुआ है। अब शांति, भाईचारे, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है कि आज आसाम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है और ये निशान देने का गौरव मुझे भी प्राप्त हो रहा है। भारत के पुलिस बलों के इतिहास में आज आसाम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिलना, ये घटना सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी और इसके साथ ही आसाम के हर पुलिस बल के हर कर्मी का हौसला और बढ़ेगा और त्याग, बलिदान और परिश्रम के साथ देश की सीमाओं की और आसाम की आंतरिक सुरक्षा की सुनिश्चितता पुलिस बल करेगा, उसको मुझे भरोसा है। मैं डीजीपी और उनकी पूरी टीम को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आसाम पुलिस आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण गंतव्यों को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীযুত জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। निशान तलब, आगे बढ़ेगा मध्य से, चल। সকলোকে থিয় হৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিশানক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।
महोदय, मैं असम पुलिस की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मार्गनिर्देशन में हम हर चुनौती पर खरे उतरेंगे। हमारे साथ आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी असम के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार व असम सरकार के अधिकारियों एवं उत्तर पूर्व राज्य के पुलिस महानिदेशकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। असम पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को भी इस समारोह का सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। असम की जनता जो हर कठिन समय में हमारी पुलिस के साथ रही है, उनका भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों का भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। और इस तरह से वह जो ऐतिहासिक क्षण असम पुलिस के लिए था, राष्ट्रपति का निशान असम पुलिस को प्राप्त हो चुका है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने वह निशान असम पुलिस को सौंप दिया और असम पुलिस अब देश के उन 10 पुलिस बलों में शामिल हो गई है जिन्हें राष्ट्रपति का निशान मिला है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि माननीय गृह मंत्री ने भी असम पुलिस के कामकाज को रेखांकित किया और बताया कि किस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में भी असम पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है और किस तरह से असम पुलिस ने अपने प्रभाव को लगातार आम आदमी के हितों में लगाया है। इसके लिए अपने अधिकारियों की, अपने जवानों की उसने कुर्बानी भी दी है, लेकिन कभी भी असम पुलिस ने संयम नहीं खोया। हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम के साथ राज्य की जनता के साथ खड़ी रही और हर सुख दुख में राज्य की जनता के साथ रही है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कुछ क्षण पहले असम पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा, प्रदान किया और यह असम पुलिस का ध्वज हवा में लहरा रहा है गर्व से कि हम हैं, हम रहेंगे, हम हमेशा राज्य की जनता के हितों की रक्षा करते रहेंगे। और इस महान क्षण, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे हम तमाम लोग, हमारे दर्शक। और यह ऐतिहासिक दिन असम पुलिस के लिए और असम के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपको लिए चलता हूं अपने स्टूडियो की ओर। धन्यवाद।